अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाज़रीन, ये हम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ये ज़ियारत असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की है। तो यहाँ पर जो है वो जो नज़र न्याज जमा हो रही है तो उसको आज काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगे हैं। अगर किसी को शक है, मैं ये कवरेज दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि इस वक्त कौम तसल्सल का शिकार है और काफ़ी चीज़ें जो है वो समाज में फैल रही, जिसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है एक तरह से डिवीज़न क्रिएट हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि हम ये चीज़ें दिखाएं। एजाज साहब, बहुत चाहान यम चीज़ हाव रूटीन प्रोसेस, मगर वह वनस कौम गमत इख्तिसार शिकार। तो बहुत यमन ना कहाँ बरकत मोजूब ना पगह आसमान त्रोमुत चाहान बहुत वन ये यूनिवर्सिटी बन, ये बोड़ हॉस्पिटल बन, ٹھیک سہ نہ نہ سہ چھ کورٹس لگن 5 ؤری پہ نہ 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 آپ بولو نہیں وہ ہوگا ہی نہیں اس میں جب تک پرائیویٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی کورٹ میں یہ 20 سال اور چلے گا تب تک ہماری قبروں پہ پیڑ چڑھ چکے ہوں گے. تو دوستو لاسٹ ٹائم کر کھول دوں 1.5 مہینے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کروڑوں ہوں گے کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہاں 10-10 5-5 روپے ڈالتے ہیں. اس میں غریبوں کا جو ہے وہ زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں, کوئی بڑا ڈالتا ہے 500 روپے وہ کر کے 10-10 20-20 کر کے لوگ 11 روپے 51 روپے کر کے ڈالتے ہیں. تو انشاءاللہ ایگزیکٹو آفیسرس نے جو بھی ہے ان سے حساب بھی لیا جائے گا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے, شریعتی طور پر جو ہے وہ حساب سب سے زیادہ ہے. کمیٹی بنائی جائے جس میں گورنمنٹ امپلائیز ہو, پولیس کا ایک ہو, بینک کا کوئی ہو یا پرائیویٹ کا سا پبلک میں سے, اس کمیٹی کے ہر بار سائن لیے جائیں گے. کورٹ کا آرڈر ہے کہ ایڈمنسٹریٹر از الون ریسپانسبل فار کلیکشن آف آفرنگس. سیدھی سی بات ہے. وہیں جس وقت وہ آئے اسپیشل افسر ادھر جب کورٹ کا وہ ہوا انٹریم آرڈر, تو اس وقت میں بھی یہاں تو ہمارے بڑے برادر ریاض صاحب اللہ تعالیٰ خالد تحصیلدار وہ ایڈمنسٹریٹر خالد تحصیلدار. اس وقت ڈیسائیڈ ہوا ٹیکنیکلی یہ پاسبل نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹر مت ہے آگ زنگ یہ اچھا ہرستان میں کلیکٹ کریں. اس وقت ہم نے ڈیسیجن لیا کہ بھائی آپس میں کہ ہم سیف لگا دیں گے, ادھر سیف فکس نہیں کریں گے, البتہ سیف ایک رکھیں گے جس میں یہاں امپلائی ہوگا کوئی بھی کسی کو بھی رکھا جائے تو وہ ان کو کہے گا کہ بھائی سیف میں ڈالا کرو. بعد میں کیا ہوا کہاں ڈالتے تھے وہ, لیکن وہ سیف میں ڈالا کرو تاکہ سیف کو کھولتے وقت آسانی ہو جائے, اس وقت ایڈمنسٹریٹر آ سکتا ہے. تو سپریم کورٹ میں یہ بھی ایک ڈائریکشن تھی کہ یہاں 2 امپلائیز اوپر رہیں گے 2 نیچے, وہ بھی ڈیپوٹیشن پہ لانے ہیں. بعد میں کیا ہوا کس طرح بھرتی ہوئی کیا ہوا وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, مگر ہم کہتے ہیں صرف اس وقت آئے ایڈمنسٹریٹر نکالے, ہم بھی پارٹی ہمیں دے دے وہ کہ بھائی آج اتنا جمع ہوا, ڈے ٹائم میں ہونا چاہیے بینک میں جمع. اس کے بعد کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ اس کو کم سے کم 6 مہینے کے عرصے تک اس کو فکس رکھا جائے اور 3 مہینے کے بعد اس کو پھر رینیو کیا جائے, اس کورٹ کو حساب دے. ان بٹوین اگر آپ کو کوئی جنرل اپکیپ کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کر سکتے ہیں, رجسٹرڈ کسی ایجنسی سے کرائیں یا کریں, اس میں کوئی روک نہیں ہے. مسئلہ یہ ایشو کیوں بنانا ہے ہم نے کسی کو, اور ہم نے آج تک کمپرومائز ہی کیا. میں اس کشتواڑی آپ سے اب ایک ہی سوال پوچھوں گا, کب تک یہ مسئلہ رہے گا, کب تک ہم تیار ہیں. ہم نے کہا کہ آؤٹ آف کورٹ, دیکھو جی آؤٹ آف کورٹ اگر اس کی کوئی سیٹلمنٹ ہونی ہے تو ہم نے قانون کو بھی رکھنا ہے بالائے طاق اور وقف ڈپارٹمنٹ کو بھی اپنا ایکٹ بالائے طاق رکھنا ہے. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنی یہ کوئی ہمارا ان کا ساتھ اوقاف کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں.
लेकिन ये विरासत का झगड़ा है, ये हमें विरसे में मिला है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो लैंड वगैरह है, ये तो खैर ये तो पब्लिक यूजर का मसला है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेटस को दिया या इसको रिमांड बैक वापस किया, उसने एक रेवेन्यू की सर्टिफिकेट को देखा, वहाँ उसमें लिखा है कि इसका कोई डोनर नहीं, किसी ने वाकफ नहीं किया है ये। उसी सर्टिफिकेट पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस भेजा। हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। क्यों ये जो पब्लिक मनी है इधर जमा रहे, ये किसी काम आएगा। यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी बने, हॉस्पिटल बने, सदका जारिया रहे, लेकिन फिलहाल हमने अपने बहुत सारे ऐसे मसले हैं यहाँ, तो वो भी मसले हो जाएंगे हल, लेकिन कोई करे नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन आप चाहते क्या हो, आपकी डिमांड्स क्या है? वो डिमांड हमने दिया है लिखकर, वो कैमरे पे हम क्या बताएंगे, वो तो हमने दिया है। ये देखिए जी जी, ये देखिए अब इसकी कलेक्शन होगी। यहाँ कैमरे लगे हैं, मैं एक बार फिर से दिखाऊं, और यहाँ पर वक़फ़ के एम्प्लॉइज़ वगैरह सारे मौजूद हैं, खुद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मौजूद है। नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। फिरदौस साहब से मैं एक आध सवाल पूछूंगा, उसके बाद में वीडियो बंद कर दूंगा। तो फिरदौस साहब, नहीं इधर थोड़ा सा काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो आपके यहाँ आसिफ डार साहब है ये साथ होते हैं, तो इनको लेकर भी लोग जो है वो काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं। जबकि हमने देखा कि जब भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो अपने किसी न किसी ट्रस्टेड बंदे को साथ रहता है। तो क्या आप आसिफ डार के बारे में थोड़ा सा बताइए, इनका रोल क्या है और क्या इनको तनख्वाह मिलती है? देखिए आसिफ साहब, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा औकाफ वर्सेस लोगों में एक इंतशार फैला हुआ है। ये दोनों ज़्यादती जो हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस है। हम इसकी इतला बगैर कोर्ट को किसी को दे नहीं सकते हैं। हमें कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन है कि यहाँ पे इनको भी जो पार्टी है और हमको भी, हमें सिविल सोसाइटी से भी लोग लाने होते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को कहा, हमने इमाम साहब को कहा, हमने आपके दोस्त आरिफ साहब मुंशी वगैरह मुझे भी कहा बोला कि आप आइए जिस दिन हमारा केस खुलना होता है। लेकिन हमेशा हर वक्त में एक एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने साथ कोई ना कोई एक ख़ास जिस पे ट्रस्ट होता है, उसमें एक आसिफ साहब हैं, ये सिविल सोसाइटी के हैं, बीच बाज़ार में इनकी शॉप है, 40 साल के इनका बिज़नेस चल रहा है, 5 वक्त नमाजी है जामा मस्जिद के, और ये भी हम लाते हैं। ये शुक्र है इनका कि ये बगैर सैलरी के हमें आते हैं। यानी कि मैं वही क्लियरेंस चाहता हूँ कि इनको कोई सैलरी नहीं, कोई सैलरी नहीं है। ये वक़्फ़ में हमारी मदद करते हैं, हमेशा 24 घंटे 365 दिन हमारे साथ रहते हैं। जब भी वक़्फ़ के मुलाजमों को या वक़्फ़ के डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, हम इनको बुला के लाते हैं। जिस दिन भी हमने यहाँ सेफ खोलनी होती है, उस दिन हम आसिफ साहब को लाते हैं। यही, और यहाँ पे जो हमारे लोकल हर एक को हमने बुलाया, हर वक्त में बुलाया, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन बाज़ारों में क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें कोई जवाब नहीं दे सकते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस है। जब भी हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन मिलेगी, हम आम लोगों में पब्लिक करेंगे इस चीज़ को। तो शुक्रिया फिरदौस। किसी को एतराज़ नहीं है किसी का जी जी, मगर यहाँ पे ज़ियारतों पे ऑर्डर चलेगा सिर्फ कोर्ट, बिल्कुल, और किसी का नहीं चलेगा। ये जो कोर्ट की डायरेक्शन जो है वो हमने भी माननी है, सब ने माननी है। जी जी, कोई अगर जिम्मेदार आ सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक कमेटी बने जिसमें ऑफिशियल भी हूँ, नॉन ऑफिशियल हूँ। जो कमेटी कल को इनको भी काम आएगी, भाई इस कमेटी के तहत हम ये हमारे उस वक्त होते हैं, लेकिन बनाए नहीं कोई असूलन कमेटी। नहीं ऐसा सब एक बड़ी चीज की जा रही, कंपैरिजन हो रहा है, उस एडमिनिस्ट्रेटर ने इतना पैसा जमा किया, इसमें ये उतार चढ़ाव। कंपैरिजन छपरेजन ये नहीं है। यहाँ ये किस्म सीजन जैसा होता है। ये जिस वक्त लोगों को फुर्सत होती है वो आते हैं और उस पर आएंगे। जिस वक्त जमींदारी का काम खत्म होगा उसके बाद ज्यादा लोग आएंगे, इसलिए चलता रहता है। और यहाँ उतार चढ़ाव नीचे लिहाज मजहब व मिलत लोग आते हैं। और ये जो नजर न्याज है, जो भी है ये ऑफरिंग्स है, ये ऊपर उसका उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं। शुक्रिया एजाज साहब। ये देखिए अब इसको काउंट किया जाएगा, बंडल बनाए जाएंगे, यहाँ पर इसको मॉनिटर किया जाएगा। फिर पहले इसको कुछ लोग जो है वो घर लेते थे, लेकिन अब ये सीधे यहाँ से बैंक जाता है। अगर 4 बजे तक इसको काउंट ना किया गया तो फिर जो उसके बाद अगर होगा तो ये उसके बाद फिर उसी सेफ में वापस डाला जाता है, फिर अगले दिन और निकाला जाता है, तो फिर सीधे बैंक में भेजा जाता है। ये किसी के पास ये कैश रहता नहीं है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो सब्र तामुल से काम ले। हमारी भी नज़रें इस पर हैं और ज़ाहिर से तौर से बात है कि हम नहीं चाहेंगे कि गलत हो, क्योंकि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो हमेशा इस चीज़ की आवाज़ उठाता रहता हूँ। अगर कोई भी कहीं गलत हो
تو ہم چاہیں گے کہ یہاں پر ڈیجیٹل سسٹم کو جو ہے وہ اسٹرانگ کیا جائے, CCTVs اور لگائے جائیں, کیمراز لگائے جائیں, تاکہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ دیکھ سکے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو ہماری یہ کوریج آگے بھی جاری رہے گی, ہم اس مدعے پر آگے بھی بات کریں گے. آپ سب کا سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں یہ بھی بتا دوں کہ میں ایڈمنسٹریٹر سے یا ایگزیکٹو آفیسر سے اس کے بارے میں جو ہے وہ حساب بھی لیں گے اور وہ حساب دیں گے بھی.